Welcome back. In this video, we will discuss the properties of decomposition and we will see the definition of fifth normal form. Decomposition, as you know, it is a process of splitting the table or decompose the table into smaller table that remove the redundancy from the original table. So in order to decompose a table into a सब table, we make sure कि जो इसकी जो properties हैं वो भी उन decomposed table में हों. So what are the properties of decomposition? There are two important properties of decomposition. One is dependency preservation and another one is lossless join property. So in dependency preservation we make sure कि जो हमारी original table के अंदर dependencies हैं वो decompose होने के बाद हमारी decomposed table के अंदर भी exist करें. Yani, for example, we have three dependencies in our relation and we decompose that relation into two tables, R1 and R2. After the decomposition, we may get those three dependencies, those three constants from the decomposed table. अगर हमारी जो ओरिजिनल टेबल में कंस्टेंट थे वो हमारे चाइल्ड टेबल में भी एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन्स जो हमारी डिकम्पोजिशन है वो क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रही है. Okay, lossless join property. So when we decompose our table into a small table and then we reunite those decomposed table through natural join, तो जो हमारा resultant table है वो हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए original table के. अगर हमारे original table में 5 rows exist करती हैं तो हमारा जो resultant table है natural join, जो कि हमारे जो हमारे डिकम्पोज टेबल है उनको हमने नेचुरल ज्वाइन के थ्रू कंबाइन किया और जो रिजल्टेंट टेबल आया है तो उसमें भी हमारे पास 5 रोज ही एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल. हियर वी हैव एन एग्जांपल. हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सी डी. इसमें हमारे पास तीन डिपेंडेंसीज हैं, fd1 फ्रॉम a to b, fd2 है हमारे पास b to c एंड fd3 है हमारे पास c to d. When we decompose this relation into two, R1 ABC and R2 CD, so we make sure जो हमारी original जो तीन dependencies हैं ये हमारी decompose table में भी exist करें. तो लेट्स चेक कि हमारे ये डिकम्पोज टेबल में ये ओरिजिनल जो डिपेंडेंसीज हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं. सो फॉर दैट वी सी ए टू बी. Yes, A to B exists in this table, in this R1. B to C, yes, B to C also exists in R1. C, the third dependency C to D, yes, C to D also exists in R2. So these two tables has all three functional dependency. It means it preserve the dependencies. Let's see with the same example. हमने यहाँ पे जो टेबल है उसको डिकम्पोज दूसरे वे से किया है. फॉर एग्जाम्पल हमने R1 में जो है हमारे पास ACD है और R2 में जो है हमारे पास BC है. तो हम चेक करेंगे क्या जो हमारे ओरिजिनल डिपेंडेंसीज हैं, जो ओरिजिनल टेबल में जो डिपेंडेंसीज हैं वो डिकम्पोज होने के बाद भी एग्जिस्ट करेंगी या नहीं. सो यू कैन सी कि R1 के अंदर हमारे पास C to D वाली डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करी है और R2 में हमारे पास B to C वाली डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करी है. बट the dependency A to B, it doesn't support by R1 and not exist in R2. It means कि जो हमारी ये डिकम्पोजिशन है ये हमारी डिपेंडेंसी 1 को जो है वायलेट कर रही है. It does not preserve the dependencies जो कि हमारी ओरिजिनल टेबल में एग्जिस्ट करती है. तो this is not a dependency preservation decomposition. तो हम कहेंगे ये जो decomposition है इसमें हमारी dependency preserve नहीं हो रही. So if we remember, जब भी हम normalization के step follow करते हैं to remove the redundancy in each normal form, हमने क्या किया था जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं. एंड देन जब सेकंड से थर्ड में जाते हैं तो हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं और टेबल को स्प्लिट करते हैं. इन अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारी जो डिपेंडेंसी है वो वायलेट नहीं होती, वो प्रिजर्व रहती है.
But when we go towards the from third normal form to BCNF, in most of the cases BCNF violates our dependency reservation. You can see कि हमने BCNF में staff IDate कार रजिस्ट्रेशन, ये डिपेंडेंसी जो कि हमारी BCNF के रूल को वायलेट कर रही थी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो कैंडिडेट की होना चाहिए, तो हमारी ये डिपेंडेंसी जो है BCNF में हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया था, इसको एक अलग से स्प्लिट कर दिया था इन एन अदर टेबल। तो जब हम इसकी स्प्लिटिंग परफॉर्म कर रहे थे तो वी कैन सी, यू कैन चेक द डिपेंडेंसी कि जो हमारे रिजल्टेंट टेबल्स हैं उनमें कार रजिस्ट्रेशन, आई डेट, आई टाइम जो कि आइडेंटिफाई करें प्रॉपर्टी नंबर, कमेंट और स्टाफ नंबर को, तो ये डिपेंडेंसी इसमें एग्जिस्ट नहीं करी, हमारी किसी भी टेबल में ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करी। सिमिलरली द डिपेंडेंसी नंबर 3, दिस इज आल्सो वायलेट इन दिस सिनेरियो। सो BCNF के अंदर हमारे पास मोस्ट ऑफ केसेस में हमारी डिपेंडेंसी क्या होती है, वायलेट हो रही होती है, बट वी हैव टू चूज कि या तो हम अपनी डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करें या फिर हम अपने डेटाबेस में रिडेंडेंसी को एक्सेप्ट करें। तो सो वी जस्ट चूज टू रिमूव द रिडेंडेंसी एंड वी जस्ट कन्वर्ट आवर टेबल इनटू BCNF। Lossless joint decomposition. In lossless joint decomposition, we must sure कि जब भी हम टेबल को डिकम्पोज करें तो वो जो डिकम्पोज टेबल है एंड देन वी अगेन रीयूनाइट दोस डिकम्पोज टेबल विथ नेचुरल ज्वाइन, तो जो हमारा रिजल्टेंट टेबल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए हमारे ओरिजिनल टेबल से, यानी बिफोर डिकम्पोजिशन एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन जो हमारा नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट है वो हमारा क्या हो, सेम हो। अगर हमारी दोनों नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल टेबल आर सेम एज द रिजल्टेंट टेबल, देन वी कैन से इट इज अ लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, यानी हमारी जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। सी वी हैव एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारी जो डिकम्पोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है RABC जिसे हमने डिकम्पोज किया है इंटू 2 R1 एंड R2। So before the decomposition we have 2 rows, 1 row and 2, and after decomposition if we combine or rejoin this with the help of natural join, so we will find these 2 rows. So the number of rows before decomposition and after decomposition are same, so we can say it is lossless joint decomposition. But here we have lossy decomposition. Here is the case, सी के हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल है एम्प्लॉय का उसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, और जब हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, देखें हमने आईडी नेम और नेम, स्ट्रीट, सिटी, सैलरी 2 टेबल्स बना लिए हैं, तो जब हम इसको नेचुरल ज्वाइन के थ्रू इसके डिकम्पोज टेबल को जब हम नेचुरल ज्वाइन के थ्रू रीयूनाइट कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ओरिजिनल टेबल से ज्यादा हैं। ओरिजिनल टेबल में हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, और जो हमारे पास रिजल्टेंट टेबल है उसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, 4। यू कैन से कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ज्यादा है हमारे ओरिजिनल टेबल से, सो व्हाई इट इज लॉसी, मतलब लॉस तब होना चाहिए जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कम हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉसी इन टर्म्स ऑफ इनकंसिस्टेंसी। हियर यू कैन सी कि हमारे पास जो डेटा है उसमें रिडेंडेंसी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये रिडेंडेंट डेटा जो है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि हमारे ओरिजिनल टेबल में नहीं था। तो वी मेक श्योर जब भी हम टेबल को डिकम्पोज करें तो हमें इस तरह डिकम्पोज करना है कि हमारा जो टेबल है, जो डिकम्पोज टेबल है, अगर हम उससे दोबारा से नेचुरल ज्वाइन के थ्रू कंबाइन करें तो हमारे पास हमारे जो टेबल है वो क्या हो, लॉसलेस हो, वहां पर हमारी इनकंसिस्टेंसीज ना हो। सो देयर इज अ स्मॉल टिप कि जब भी हम डिकम्पोज करें तो वी मेक श्योर कि जो हमारा जो कॉमन एट्रीब्यूट हो डिकम्पोजिशन में, हियर वी चूज द कॉमन एट्रीब्यूट नेम इन बोथ टेबल, दैट इज नॉट कैंडिडेट की। सो वी मेक श्योर कि जब भी हम टेबल को डिकम्पोज करें तो हमारा जो कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए डिकम्पोज टेबल में वो कैंडिडेट की होना चाहिए। So fifth normal form, so what is the fifth normal form? In
इफ यू टॉक अबाउट इन रियल लाइफ, तो हमारे रियल लाइफ डेटाबेस डिजाइन में हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को यूज नहीं कर रहे होते, बट यू शुड नो व्हाट इट इज। अगर हमारा टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है और इट डजंट हैव एनी लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी, तो हम कहेंगे कि ये हमारा टेबल क्या है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में। सो अगर हमारा टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है एंड वी चेक कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंस, कोई भी लॉसी डिपेंडेंसी नहीं है हमारे टेबल में, इट मीन्स वी आर इन fifth normal form. So what does fifth normal form do? It just ensure कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है, हमारे जो टेबल्स हैं वो हमारे जो हैं उसके अंदर जो है लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी हो, ठीक है। So that's all. Thank you.